everyone, this is Komal Kashyap and you're welcome to the very first episode of The Inside Story. स्वागत है आपका द इनसाइड स्टोरी के पहले एपिसोड में। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे हस्तियों से जिन्होंने बड़ी कम उम्र में काफी कुछ हासिल किया है। पर्सनालिटीज हु आर इंजीनियस, ओरिजिनल एंड इनक्रेडिबली स्मार्ट, और जानेंगे उनसे उनके इनसाइडर सीक्रेट्स। सो बिना किसी देरी के मैं आपको बता दूं, आज हमारे शो पे मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। लेट मी टेल यू, शी इज नॉट ओनली बोल्ड बट ऑल्सो ब्राइट एंड ब्यूटीफुल विद $1 million स्माइल। Pinky Jha, welcome to our show. Thank you so much, Komal. That was a warm welcome. Thank you so much. Okay. Pinky, I'd like to keep this conversation very informal. Is that okay? बढ़िया मतलब मुझे लगेगा मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ काफी दिन। राइट मैं खुद वही चाह रही हूँ। So guys, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं पिंकी की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन। At the age of 28, she is a multilingual MC, digital creator, voiceover artist, lyricist, co-owner of Sambhavna, a photography and filmmaking firm, and also a freelance content concept creator. That's not all. Pinky has been awarded #1 anchor of Odisha by WCSW, that is Women Council of Social Welfare, and has been awarded for excellent performance in the field of entertainment by WISH, that is Women in Society Health. पिंकी, I'm just like wow, मुझे ये सब कुछ बताने में इतना अच्छा लग रहा है एंड आई कैन इमेजिन कि कितने एफर्ट्स लगे होंगे यहाँ तक आने में। एंड मैं अपने लिसनर्स को भी ये बता देना चाहती हूँ दैट डोंट मिस दिस अमेजिंग सेशन बिकॉज वी गोना टॉक अ लॉट ऑफ थिंग। सो सिट बैक एंड रिलैक्स, प्लग इन योर हेडफोन्स एंड हियर वी गो। थैंक यू कोमल। सो पिंकी, आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करती है और आपका बचपन कहाँ बीता है? Okay, so actually my full name is Pinky Jha, as you have already said that. So I belong to Bihar. Everybody can easily relate to that. And my natives are in Bihar. I'm born in Kolkata. My education has been at different places. Like I have done some of my school days in Ranchi, some in Kolkata, some in Jamshedpur, and then Joda. And Joda is a place in Odisha, and then now in Bhubaneswar. I am here, I'm just residing here in Bhubaneswar, Odisha, the capital city of Odisha. But I work for Pan India from here. And I'm here because of my personal reason. Actually, I could have shifted my base to some other city too, just because I know a lot of languages. I know I could have pulled it off there as But as you mentioned that I am 28 and I'm doing so many things, so people should know this, that I'm not doing this since a year or 2 or 3. This has been done from my side, I guess, since the last 10 years now. And that's a long journey. Yeah, it's a long journey. Basically, like 10 years back, I was an engineering student. I started my engineering. Like I was a software engineer. Which degree? I'm a software engineer. Okay. और थोड़ी बहुत फैमिली के बारे में बताऊं तो my father is a doctor, so you know how difficult it is कि like you belong to a family which is full of educational and moral values, and then you do something आपको थोड़े उसी टाइप के करियर में जाना चाहिए। हाँ, वो पता नहीं क्यों वो था हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा था, अभी भी है बट comparatively थोड़ा कम है। तो they wanted me to become a doctor. Unfortunately, I met with an accident which I could not afford to give plenty number of year or days for my like preparation for the degree of doctorship जो होता है मेडिकल के एग्जाम्स वगैरह। उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उतना समय नहीं दे सकती क्योंकि ऑलरेडी मेरा कुछ दिन वो बीमार होने की वजह से जा चुका था। तो so I was like a maths bio student for my class 2. So like I had another option of engineering too. If not doctoring, then you can become an engineer because parents वही समझते हैं ना। मतलब उस समय तो अभी भी यही है, लेकिन उस समय थोड़ा वही था कि आप साइंस हो तो you have to either become an engineer or a doctor. So meanwhile I gave my exams and I gave around 8 exams for like engineering का जो होता है basics. Oh my God, 8 exams फिर भी
या फिर भी आपने अपना करियर यहाँ बनाया, दैट्स हाँ, and this is very surprising because not many people know this. First of all, I never give interviews. ठीक है, मुझे नहीं पसंद इंटरव्यू देना, मुझे लेना पसंद है, मैं देती नहीं हूँ। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। नहीं तो नहीं, इसीलिए इसकी वजह से कोई ज्यादा जानता नहीं है, बट आई एम रियली ग्लैड द वे यू पीपल अप्रोच्ड everybody from Neatly and all. I'm really like happy to hear and become a part of this entire initiative of yours. So thank you for that. Thank you for convincing me, everybody in the team. Okay. And yeah, I would like to mention this ki, while I was preparing for engineering and giving exams and all, how did I landed up in Bhubaneswar? That's again a question for a lot of people because I don't belong to this state, right? तो मतलब आई थिंक 2-3 क्वेश्चन का आपका जो आगे का क्वेश्चन है जो आपने मुझे भेजा था उसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। क्योंकि मैं मतलब एक्चुअली डिफरेंट स्टेट को बिलोंग करती थी बाय नेटिव, बाय माय लैंग्वेज, बाय माय मदर टंग, तो पीपल अज्यूम और मे बी प्रिज्यूम कि मैं उसी तरफ जाना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए। ठीक है, राइट, ऐसा होता है। हाँ, और यहाँ पे आज तक भी वो प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिलता है, दो आई विल आंसर दैट इन डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ योर्स। तो ना मैंने जब एग्जाम्स दिए तो विथ डिस्टेंस लाइक अब मेरे अपने घर से ये जगह किलोमीटर वाइज ज्यादा दूर नहीं था, लाइक 500 किलोमीटर्स के अंदर था। तो माई पेरेंट्स डिड नॉट वांटेड मी टू गो फार. I was selected for Manipal Institute. I was I got through Lovely Professional University. I was selected from, there was a institute that's in foreign. Okay, Michigan University, you must have heard of. I got through that, but I was sick. I told you na, I was sick. तो मुझे नहीं जाने को मिला. So I was very pissed off from this decision of my parents. कोई भी होगा. हाँ, तो मतलब मुझे बहुत चिढ़ गई थी मैं. और तो भुवनेश्वर कैसे आना हुआ, लाइक आफ्टर ऑल दिस थिंग? या तो मतलब वही एग्जाम्स में से देयर वाज वन एग्जाम व्हिच इज जेईई व्हिच हैपेंस हियर इन ओडिशा फॉर द बीपीयूटी व्हिच इज एन इंजीनियरिंग लाइक यूनिवर्सिटी ओवर हियर, बिजू पटनायक यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, उसका एग्जाम होता है. आई गॉट 49th रैंक देयर. ओके, मतलब 49th वाज अ वेरी गुड रैंक. सो जो उसका होता है लाइक काउंसलिंग वगैरह जो होता है, तो दैट वाज ऑन द वेरी फर्स्ट डे. यू माइट बी नोइंग कि एग्जाम के एंट्रेंस के बाद एक काउंसलिंग होता है एंड देन यू गेट थ्रू अ कॉलेज कि आपके रैंक के बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा. तो मैं ऑलरेडी चिढ़ चुकी थी अपने फैमिली से कि दे डिड नॉट लेट मी गो आउटसाइड एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ बैड फेज ऑलरेडी एंड आई थॉट हाँ, तो मतलब ऑलरेडी मेडिकल I was not able to do because of my own health issues and then these things. I could not even tell my parents what I was going through actually. And यहाँ पे जिस दिन मेरा counseling था, I remember my father came down with me and like the very first day हम लोग होता है ना, वो जहाँ पे venue होता है counseling का, we just go for a surfing कि क्या चल रहा है and all, होता है देखने के लिए कि कहाँ कॉलेज है and all, किधर क्या आपको जाना है. तो एक बेसिक हम लोग रेकी करने गए थे काइंड ऑफ. और पेरेंट्स के साथ ये होता ही है, वो देखना चाहेंगे कि कहाँ ठहरने वाली है. एग्जैक्टली. तो वहां पे ना जहाँ पे काउंसलिंग होता है, देयर इज लॉट ऑफ कॉलेजेस जो अपने स्टॉल्स लगाते हैं कि ये अच्छा रैंक है तो दिस स्टूडेंट शुड कम टू आवर कॉलेज और दैट कॉलेज, ऐसा होता है. ठीक है. एंड आई वाज लाइक ऑलरेडी टू लाइक ब्रोकन एंड वाज लाइक थिंकिंग कि भाई क्या चल रहा है यार, नहीं करने का मन है फिर भी कर रहे हैं एंड ऑल. ठीक है. तो वो स्टॉल के लाइन में देयर वाज फर्स्ट कॉलेज. ओके, एंड आई डिड नॉट इवन सी कि उस कॉलेज की रैंकिंग क्या है, उसमें कितने साल का कॉलेज है, ये सब चीजें बाद में मैटर करती है, मुझे पता चला. एंड आई वाज लाइक एडमिशन ही लेना है ना, अंदर बैठोगे कोई कॉलेज मिलेगा, यहाँ पे इस साइड कॉलेज में करते हैं, खत्म, छोड़ो, कोई टेंशन नहीं लेना. And my papa was also somehow he was kind of depressed. I understood that because he was a doctor and मैं वो नहीं कर रही थी. Though I was sick, he knew that somehow I was going through a bad phase. But फिर भी साल जाता है. Yeah. So he was like, ठीक है, तुम sure हो तुम इस कॉलेज में पढ़ना चाहती हो? Because I don't know anything about any ABCD about engineering. If you want to study there, you can go, you can take your choices. मैं कुछ नहीं बोलने वाला. ठीक है. तो I was like, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं से तो करना है. And I got through that college. ठीक है. तो when I got through that college, I understood
that college is just around, I think 2 years back it was made. Okay, it was a very fresh college. Okay, there was not many a batch above us. तो ठीक है, कोई नहीं, चले तो आए. उस समय मुझे ये लैंग्वेज नहीं पता था, यहाँ का जो लैंग्वेज होता है लोकल लैंग्वेज, दैट इज ओडिया, आई डिड नॉट न्यू. एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग कि अब आप उस पे अपनी प्रोफेशन चला रही हो. या तो व्हेन आई गॉट थ्रू द कॉलेज आई अंडरस्टूड कि भाई मतलब यहाँ पे क्या है ना, आप इधर पढ़ाई करो, देयर इज नो सेकंड थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, नो पैशन एंड ऑल. एंड मैं बहुत पहले से लिखती हूँ, आई राइट since I was in class 8. Okay, that's a very good thing. Yeah, so there was बहुत कम लिखते हैं लोग. हमारे प्रोफेशन में लिखना is very important because Yes. what you are doing, and I have been it as an RJ, I have been as a VJ. I generally don't love to speak on scripts. मुझे नहीं पसंद, मैं बहुत फंबल करूंगी उसमें, मुझे पता होता है. If there is a thing that is my own written and either extempore and all, even if it's a government serious event, I do extempore. I love that. Yeah. And that somehow you can show your credentiality too. So Of course. basically that was the first year of my engineering was the year when I understood that, okay, fine, side by side I can do something else too. So that's the reason why it's like I said कि 10 years back ये सब शुरू हो चुका था कहीं ना कहीं. Okay. So you can ask me the next question, then I can proceed on with the things. Okay, so after all this thing, what is the secret behind your smile? I mean, इतना सब कुछ के बाद you started a new journey. Yeah. The secret behind smile is, what I see around. आप भी इस चीज को believe करोगे कि everybody is going through some or the other kind of pain, some or the other kind of turmoils within them. Yeah. किसी का कुछ हो रहा होता है, किसी का कुछ हो रहा होता है, and it's very easy to judge and pass comments and all in this society where we live in. Yeah. And like I feel all the artists are blessed enough to be into a profession where they can spread smile. I know that won't change anything. I know that won't make their life very easy. और मे बी शायद उनको ये लगे कि साला मैं इतने सारे टेंशन से जा रहा हूँ and ये क्या हंस रही है and all. But you know what? That one smile does the work, does the magic. See, I don't know you. I have never talked to you, but the way you smiled and approached, it made the entire environment very calm and quiet. And ठीक है, चलो, I know her since a long time. I can talk, right? So that's the thing that we need to do. So keep a smile always. That's what I say. And अगर आप दिल से हंसते हो तो वो हंसी खूबसूरत होती है और वो किसी का दिन भी बना सकती है. Exactly, absolutely. So पिंकी, ये एंकर बनने का आइडिया कहाँ से आया? Like कॉलेज आ गया, सब कुछ आ गया. Yeah, so that again is a little long story, but you have to keep patience to hear that. There was a friend of there was a friend of mine who is a professional singer currently. Okay, so I have my mentality could not match up with a lot of people in my college because maximum of them were from the local dialect and I was someone from a different state without knowing the language. So what generally used to happen was सब बात करते थे ओडिया में एंड मेरा सब ऊपर से पार होता था, ठीक है. तो मतलब that friend of mine told me once, see, you have got a good voice, you write so well, like that. He was the only friend, he is a male and he was the only friend of mine actually, ठीक है. I can understand. हाँ, तो उस कॉलेज टाइम पे वो एक ही दोस्त था मेरा और he used to tell me कि देख, मैं भी क्रिएटिव इंसान हूँ, तू भी लिखती है, तो मैं तेरे को इंसिस्ट करूंगा कि try something which can relate to both your passion, the writing and all. So I gave my audition. I got to know there's this radio which is having an audition and we can walk through and देखते हैं होता है या नहीं होता है. When I went there are 3 tests which happens in a radio jockey. ठीक है. पहला तो आपका writing skills. ठीक है. They'll give you a topic, they'll give you an advertisement and you have to finish it within 30 seconds, 10 seconds, 20 seconds. बहुत लोग जानते होंगे ये चीज को. जो लोग ऑलरेडी इस चीज में, या तो फिर एक मॉक इंटरव्यू भी होता है सेकेंड राउंड में एंड देयर इज अ वॉइस टेस्ट, ठीक है. सो द वॉइस टेस्ट आई क्रैक्ड, द राइटिंग पार्ट आई क्रैक्ड, बट बोथ द थिंग्स आई क्रैक्ड इन द लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, नॉट इन ओडिया, राइट, व्हिच इज अ नेसेसिटी हियर.
ठीक है. हाँ. तो मेरे को एक्चुअली रिजेक्ट कर दिए वो लोग. दे सेड मी डायरेक्टली कि सी एवरीथिंग इज फाइन, यू राइट सो वेल, वी कैन इवन कन्वर्ट योर राइटिंग्स टू आवर लैंग्वेज एंड मेक इट वर्क, लेकिन आप ओडिया नहीं जानते तो आपको शो कैसे देंगे. ठीक है. तो they local language matters, like matters, and yeah, especially for the radio channel you are into, because यहाँ क्या है ना, the like radio audience is moreover into the interior parts of Odisha, and वहाँ ये language नहीं समझते ज्यादा, हिंदी वगैरह नहीं समझते. ठीक है. तो ठीक है, हिंदी समझते भी हैं, but they don't want to accept because you know again their language is their language, right? So I was like rejected. तो I was like kind of, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ठीक है रिजेक्शन है, बट आई थिंक आई रोट गुड, मुझे लिखने के लिए तो रख ही सकते थे, बट दे डिड नॉट कीप. ठीक है. तो लेकिन टू माय सरप्राइज आई जस्ट फिनिश्ड माय फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग बाय देन, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम, द सेम रेडियो. ओके. एंड दे आस्क्ड मी कि एक काम करो, तुम आओ, तुम लिखो, we'll take your advertisings for that. तुम जो भी लिखोगे उसको हम एडवर्टाइजिंग में अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी जरूरत हुआ तो हिंदी में लेंगे. ठीक है. एंड मीनवाइल लर्न द लैंग्वेज. ठीक है. तो दैट वाज अ बैरियर. ओके. बट देयर वर 3 थिंग्स दैट वाज ऑफर्ड फ्रॉम देम कि हम तुमको कुछ पे नहीं करेंगे. ठीक है. तुम लैंग्वेज सीख रही हो, हम तुमको 6 महीने का टाइम दे रहे, तुम लैंग्वेज सीखो, देन आई लाइक इट माइट बी कि हम आपको देखेंगे, अगर फिर लगा तो हम जॉब ऑफर करेंगे. ठीक है. सो दैट वाज द फेज व्हेन I was like, I used to go to college at 6 a.m. in the morning. I used to come back at 1. I directly used to go to the office. I used to work there. I used to sit. Take care. I used to write advertisement. I used to come back at 10, generally 10 in the night. Okay. And उस कई बारी 11 भी बज जाते थे, and that was a hostel life, so you know कितनी गालियाँ पड़ती थी. ठीक है. Yeah, I can understand. हाँ, तो ये कुछ इनिशियल 6 months का टाइम था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि I got the job as well. ठीक है. I learned the language then. People helped me a lot in the मतलब उस रेडियो पे मुझे सिखाया बहुत कि आप ऐसे बोलो वैसे बोलो. Obviously my dialect of Odia is different from the dialect of people speaking here, क्योंकि वो होता है इन्फ्लुएंस आता है. मैं बिहारी, राइट. तो मुझे मेरा ना वो क्यूट वाला उड़िया उनको पसंद आ गया, एंड दे वांटेड टू गिव मी अ शो. ठीक है. प्राइम टाइम शो. दैट वाज 5 to 8 वाला शो मुझे मिला, एंड दैट वाज ग्रेट. आई फेल्ट सो, but I got the like monetary thing around 5.5K for a month, and that was pretty bad because initially उन्होंने मेरे को ये बोल के रखा था कि हम आपको पार्ट टाइम जॉब कराएंगे, because they knew I was a student. ठीक है. But 6 महीने के बाद, 6 महीना समय देने के बाद, that organization said me कि you cannot stay there. अगर तुम पार्ट टाइमर रहोगी तो हम तुमको नहीं रखेंगे. ठीक है. एंड आई जस्ट सेड देम वन थिंग कि मैंने सीखा, मैंने समय दिया, आपने मेरी राइटिंग्स ली जिसमें कि मेरा नाम नहीं है, एंड अभी भी कितने सारे ऐड मेरे चलते हैं, और आपने मुझे वहां पे मतलब कुछ तो मुझे क्रेडिट्स भी नहीं दिया, तो व्हाट विल आई डू. लेकिन नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम तो सीख रही हो ना, क्रेडिट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है आज नहीं तो कल सीखना, इसको सीखना बोलते हैं, पीपल डू लाइक दैट. एंड आई सेड कि नहीं, मतलब मैंने समय दिया है, मेरे घर पे तब तक पता नहीं था. हाँ, 6 महीने तक इट वाज ओके, बट आफ्टर दैट हाँ. तो आई सेड कि ठीक है, अब डू वन थिंग, आइदर कीप मी ऑन द जॉब, और मे बी आप मुझे लिख के दो कि आई डिड एन इंटर्नशिप हियर सो दैट आई कैन अप्लाई समवेयर एल्स. तो दे सेड कि हम आपको जॉब दे देंगे लेकिन पार्ट टाइमर नहीं देंगे, यू हैव टू बी अ फुल टाइमर. सो ना आई कुड नॉट लीव दैट टाइम, क्योंकि मुझे लगा कि ये शायद स्टार्टिंग है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मुझे कोई चैनल नहीं रखेगा, क्योंकि वेयर विल आई शो माई एग्जिस्टेंस, राइट. क्योंकि वो भी नहीं देंगे. सबसे बड़ा स्ट्रगल फॉर मी इज आई बिलोंग टू अ डिफरेंट स्टेट, which on time interval these people make me realize कि आप यहाँ की नहीं हो. ठीक है. तो ये अभी भी होता है, तो उस समय थोड़ा ये था, तो आई थॉट कि ठीक है ले लेते, बट दैट वाज लाइक that was very very hard to do, because I used to go to college, I used to come back at 1. Many a times I stayed there in the radio for like entire night. Schedule like that was, क्योंकि बहुत सारे दिन ऐसे होते थे कि मेरे बैग में there used to be a one cloth,
एंड मैं रात भर ऑफिस में रुकती थी और सुबह डायरेक्टली कॉलेज जाती थी. Oh my God. और रेडियोज यू नो इट्स 24 आवर टोटली चिल्ड. ठीक है, उसको आप एसी वैसी आप ये नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते, तो आप सो भी नहीं सकते वहां पे, आपको नींद नहीं आएगी. ठीक है. तो मेरे को ये भी याद है कि मैंने एक टाइम पे 5 से 8 का शो किया, 8 से 10 का शो किया, बिकॉज माई आरजेज यूज्ड टू से सी आई एम नॉट अवेलेबल टुडे, यू डू द शो. ठीक है, जो बाद के शो के होते थे. तो इट वाज काइंड ऑफ अ हैरेसमेंट, बट दैट हैरेसमेंट मेड मी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू नो दैट केम एज अ ब्लेसिंग, बिकॉज मैं जो दूसरे आरजेस के शोज करती थी, द पैटर्न वाज डिफरेंट. कुछ रोमांटिक शोज होते थे, कुछ यूथ बेस्ड शोज होते थे, कुछ क्वेश्चन बेस्ड शोज होते थे, कुछ नॉलेज बेस्ड शो थे. तो मैं क्योंकि सब कर रही थी एक टाइम पे, मैं उनकी आरजे नहीं थी. दैट वाज अ फिलर जॉब आई वाज डूइंग. मतलब तुम शो कर रही हो, तुम अवेलेबल नहीं हो, तो मैं तुम्हारी जगह पे हूँ. ठीक है, बट मुझे नॉलेज मिलता था. तो दैट वर्कड लाइक अ ब्लेसिंग व्हेन आई स्टार्टेड अ करियर एज एन एमसी. ठीक है, बट 2 साल मतलब मेरी इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर चल रही थी, 1.5 year बाय द टाइम ऑफ माई लाइक doing the internship and radio. उतना साल जा चुका था, and I realized कि I'm just being used in that company for every other thing. ठीक है, I'm getting paid very less, and moreover मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा hamper हो रही है, तो I stopped. ठीक है. So when was the time you actually realized कि हाँ मुझे अब यही करना है, this is what I want to be do in my life? See, actually, that's what I was saying, that I took a break from my RJing when I was in the second year of my engineering for a reason, because I had to study. I have to give time for that, because software engineering, and then when you're a good student, I was a good student. So my college has a lot of like expectations from me. Yeah. Bro, you're going to do something good in your results. ठीक है, तो मुझे करना था. तो I went down for like technically I gave 200% टाइम टू माई स्टडीज देन. और रेडियो के टाइम पे मैंने 1-2 रेडियो की तरफ से देयर यूज्ड टू बी लाइक, आप जिस रेडियो पे काम करते हो तो वो लोग भी आपको कुछ शोज, आउटडोर शोज करने भेजते हैं. ठीक है, बट दैट्स नॉट पेड. ठीक है, बहुत जगह पे वो पे नहीं होता. तो मैंने 1-2 किए थे, लेकिन बाय द टाइम आई फिनिश्ड माई 4th year ऑफ इंजीनियरिंग, आई गॉट टू रियलाइज दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू. आई डोंट वांट टू गो इनटू जॉब थिंग एंड ऑल. Okay. And I meanwhile I did do my job thing for an IT firm for like couple of months, and then I realized no, I have to switch because here I am not able to give my 200%. और एक चीज है कि मैं मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ अपने करियर को लेके. I love that क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. ठीक है, that's a good thing. So that is a good thing for all of us, but not for the parents. right. तो मीनवाइल पापा ने मुझसे पूछा एक बारी, मैं और किसी को कुछ नहीं बताती, मेरे घर पे मुझसे आज तक कोई बात नहीं करता फॉर मी चूजिंग दिस लाइन एंड ऑल. ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन है. तुम लाइक यहाँ मैं अकेले रहती हूँ, तो ये मैं बता दूं लोगों को, तो एनीथिंग दैट यू आर चूजिंग हैज टू बी दैट स्ट्रॉन्ग कि आप कल के डेट में अपने पेरेंट्स को या फिर जो भी आपके अगेंस्ट में हो उनको जवाब दे पाओ अपने काम के जरिए. राइट. तो मेरे पापा ने तब पूछा, what do you want to do? What do you want to continue? You want to do a job? You want to go shift to a different city? I said, see, I have already shifted to so many cities by now. I want to sit here and work for different city. तो पापा ने बोला, how will that be possible? Then I said him कि see, during my engineering I gave 2 years to a radio and all, and he was like totally stubborn कि आप ये नहीं करोगे. Okay. तो क्या उनको पता था कि आप अपने कॉलेज के डेज में ये कर रहे हो? नहीं. No. He never knew. ठीक है. एंड अभी तक भी मतलब अब तो काफी साल हो गए, बट फिर भी पापा लोगों को ये नहीं पता कि ये फील्ड होता कैसा है. ठीक है. When I chose like, see, I cannot work under someone. I know that when we are becoming an MC, we are working for a company, we are working for them, and we are under them. But then again, when you come to the stage, whenever तुम भी कभी स्टेज पे जाती होगी, तो you might be feeling कि भाई I am the boss, I am the face of the entire company, right? So that's a true feeling. हाँ, तो I thought of doing that, and मैंने बहुत कम से शुरू किया. Like I thought of doing it. Yeah, you must be enjoying the stage and the audience.
I used to enjoy a lot. Till date I enjoy a lot. बहुत अच्छा लगता है मुझे जब लोग सुनते हैं. The only problem that I faced कि मैं I was from a different language. This always came in as a barrier. Okay. So don't you think कि ये चीजें आप अपने नेटिव सिटी में करो, so that might be fruitful and पेरेंट्स के लिए भी अच्छा लगे? प्रॉब्लम क्या होता है, देखो मैं जन्मी हूँ कोलकाता में, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा आई एम वेरी वोकल अबाउट व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई थिंक द सोसाइटी शुड डू, ठीक है. तो मैं लिख देती हूँ या बोल देती हूँ क्योंकि मैं लिखना जानती हूँ, ठीक है. मैं हमेशा से सोचती हूँ ना कि यार हम लोगों को ना स्टेट में डिवाइड कर दिया गया है. पीपल यूज्ड टू थिंक कि आई बिलोंग टू इंडिया, मैं मेरा देश इंडिया है, पाकिस्तान है या जो भी है, ठीक है, XYZ. बट आप सोचो, आप खुद इंडिया में हो, हर स्टेट के लोग अलग ही हैं. आप इस स्टेट से, there was a time, आज के डेट में this is a issue, ठीक है, but I really want to point this out. There was a time when Biharis were not allowed in Maharashtra, okay. There was a time when some other state, आप आज भी साउथ में चले जाओ, even if they know your language, they won't talk to you in your language. हिंदी में बात नहीं करेंगे, इंग्लिश. क्यों? Why are these barriers? Just because we are divided by state borders. Like obviously ना, I know there is no mother tongue. हिंदी भी हमारी mother tongue नहीं है. It's like it's a mass which speaks this language. आज मुझे पता है ये बात, but लोग accept नहीं करना चाहते. किसी और स्टेट वाले को इस स्टेट में accept नहीं करना चाहते. कहीं ना कहीं वो चीजें प्रॉब्लम आज तक है, मिटी नहीं है. वो मिट भी नहीं सकती जब तक हम लोग ये स्टेट में डिवीजन जो कर रहे हैं ना, वो करना बंद करने का. दिस इज माई थिंकिंग. आई रियली वांट दैट टू हैपन समडे. आई नो दैट वोंट, बट दिस इज समथिंग आई वांट कि हो. अब सोचो कोमल, किसी तुम अभी 3 साल या 4 साल, हम बात कर रहे थे उस दिन फोन पे, यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 4 years एज एन MC. नाउ अभी मान लो तुमको कोई नहीं जानता देश में, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मे भी जानते होंगे काफी सारे लोग, आपको कोई नहीं जानता. कल के डेट में यू डू अ बॉलीवुड शो और यू डू अ प्राइम टाइम शो इन एनी काइंड ऑफ चैनल, दे विल स्टार्ट से कोमल हमारी सिटी को बिलोंग करती है, वी आर प्राउड ऑफ कोमल, कोमल डिड दिस, कोमल डिड दैट. बिफोर दैट नोबडी विल आस्क यू, राइट. मेरे खुद के अभी मैं इस स्टेट में हूँ, तो आई डोंट थिंक लाइक आई बिलोंग टू अ डिफरेंट स्टेट. और मैं यही सोचती हूँ कि मैं कहीं पे भी जा रही हूँ तो आई टेक द नेम ऑफ ओडिशा विथ मी, आई टेक द नेम ऑफ बिहार विथ मी, आई टेक द नेम ऑफ वेस्ट बंगाल विथ मी, बिकॉज आई एम बोर्न देयर, आई एम रिसाइडिंग हियर एंड माय नेटिव्स आर बिहार, राइट. बट यू नो, हम लोगों के लिए जो डिफरेंट स्टेट में गुजरा है, जिनकी जिंदगी गुजरी है, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका खुद का स्टेट भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा. जिस स्टेट में वो जन्मे हैं वो भी नहीं करेगा, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो भी नहीं करेगा. आई कैन एक्चुअली फील दिस, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली में बीता है. एंड दिल्ली में ऐसा ऑल्दो नहीं हुआ है, बट होता है. इट्स लाइक अच्छा तू बिहार से है क्या, सो एक अलग सा वो आ जाता है कहीं ना कहीं प्रोफेशन में भी, और कहीं ना कहीं वो भले बोले नहीं सामने से, लेकिन थोड़ा सा वो एक आ जाता है. Yeah, you see कोमल, तुम भी बहुत लोगों को like this, yeah. Nobody likes this. Not a person from a northeast would like to be said like चिंकी and all. हम क्यों बोले उनको चिंकी, ये उनका भी देश है, right? हम क्यों बोले किसी को अरे यार तू तो बिहारी है, बिहार में कुछ नहीं है, सिर्फ गुंडे हैं, गोली मारी है. भाई बहुत कुछ है. You just have to check that. We are knowledgeous and ठीक है, मैक्सिमम IAS ऑफिसर वहां से निकलते ही एक स्टेटमेंट है, हम हमेशा यूज कर लेते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉलेजियस, राइट. तो ये बैरियर के वजह से बहुत जगह मतलब मैंने फ्रीलांस एमसीइंग क्यों किया, आई कुड हैव डन अ जॉब एज एन एमसी इन एनी गुड कंपनी, बट एज आई सेड यू, आई हैव माय ओन प्रॉब्लम्स व्हाई आई डोंट लीव दिस सिटी, ठीक है. And I work from this city only. मैं जयपुर जाऊँ, मैं दिल्ली जाऊँ, मैं मुंबई जाऊँ, मैं यहाँ से ट्रैवल करती हूँ. एंड मुझे पता होता है कि मैं थोड़ा किलोमीटर वाइज अपने पेरेंट्स से क्लोज हूँ, ठीक है. ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ. सेकेंड थिंग इज नो टेलीविजन, नो रेडियो wants to accept a person from a different state who is more knowledgeous than them, more skillful than them into their platform. क्योंकि भाई ताकू मैंने एक ओडिया में सेइंग है,
ठीक है, ताकू नहीं गले आमरो कौन हबो, दिस मीन्स कि अगर उसको ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ये ना ट्रबल है, ठीक है। लाइक आई एम एसोसिएटेड टू लॉट ऑफ कंपनीज, कुछ मुंबई बेस्ड हैं, कुछ दिल्ली बेस्ड हैं, कुछ कोलकाता बेस्ड है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना, व्हेन दे सी माय प्रोफाइल, मैंने अगर भेज दिया अपना प्रोफाइल तो बोले कि आपका इतना एक्सपीरियंस हो कि आप इधर क्यों नहीं आते, ठीक है, व्हाई डोंट यू कम टू दिस सिटी एंड वर्क, ठीक है। अब मेरे प्रोफाइल में देयर आर 5 पेजेस व्हिच इज ओनली ब्रांड के लोगोज लगे हैं कि मैंने कितने ब्रांड के लिए काम किया है, ठीक है, एंड वो 50% है पूरा। मेरे डिजाइनर ने बोला कि दीदी मैं और ढूंढ नहीं सकता, प्लीज आप खुद कर लो, ठीक है। तो लाइक ठीक है, तो दे से कि व्हाई डोंट यू कम टू दिस सिटी। सी मेरा मानना क्या है ना, आप सिटी चेंज कर लो, आप लोगों की मेंटालिटी नहीं बदल सकते, राइट, ठीक है। कोमल मैं ऐसे प्रोफेशन में है, व्हेन वी आर आर्टिस्ट वी आर नॉट बाउंडेड बाय द सराउंडिंग्स कि आपको इतने ही पैरामीटर में परफॉर्म करना है, आप कहीं भी कर सकते हो। इट जस्ट नीड्स द राइट पीपल टू सी योर राइट टैलेंट, राइट। तो मैं यहाँ पे हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई चैनल्स टू एक्सेप्ट मी एज अ पर्सन फ्रॉम, इवन फर्स्ट एज एन इंडियन एंड देन फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, so they aren't able to do that, but ठीक है, like freelancer में I'm doing a great job, I'm like I feel like I get shows and ठीक है, okay, you can't, yeah, yes and so पिंकी, आपका कुछ आइडल होंगे, like कोई ऐसे आइडल that inspire you इतने दिनों में, या फिर any person? See, there's lot of person, हर कोई ये डायलॉग मारता है, मैं भी मार लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है सुनने में। I get inspired from everybody, but पहले इंस्पिरेशन तो obviously पापा ही हैं, because the kind of sorted human being he is, though he could not understand my profession for a while, it's okay, but he is very sorted, and I've seen him talking very humbly to all his patients, and the way he like tackles himself with his ethics कि मुझे ये नहीं करना और ये करना है, वो बहुत बैलेंस्ड है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है उनका। उनसे मेरे अंदर एक चीज आया कि आई एम वेरी पंक्चुअल, ठीक है, बिकॉज ही इज वेरी पंक्चुअल। मैंने आई एम पंक्चुअल इन अ सेंस कि अगर इवेंट 4 बजे होगा तो आई विल बी देयर एट 3 आई गेस, ठीक है, एंड खत्म 8:30 बजे अगर उन्होंने बोला है, मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा दूंगी, उसके बाद नहीं दूंगी। दैट्स व्हाट माय एथिक्स इज, ठीक है। That's very good. Punctuality matters everywhere. Yeah, and apart from that, if I get inspired from somebody, then they are the people जो लोग मतलब स्टेज लगाते हैं ना, कांटा ठोकते हैं जो बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, तो उनसे बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं हमेशा मतलब यू विल बी सीइंग दिस, अगर आप इवेंट में थोड़ा पहले जाओगे तो दे आर द वन will be the first person जो लोग ट्रक से निकालेंगे सामान और एक एक करके डंप करोगे, तब तक शायद इवेंट मैनेजर भी नहीं आया होगा, ठीक है, they will be there। तो पूरा खत्म होने के बाद वो भले वो नशे में हो, वो थक जाते हैं, वो अगर कुछ भी करें, but they are there, right? So I get inspired from them कि हाँ भाई बहुत डेडिकेटेड होते हैं वो लोग। right so initial challenges आपने मुझे वैसे तो बता दी है, बट ऐसी कुछ और भी कुछ इनिशियल चैलेंजेस होंगे जो कि बहुत टैकल करने लायक नहीं होगा? सी इनिशियल चैलेंजेस, सबसे पहले ना आप लड़की हो तो आपके चैलेंजेस बचपन से ही शुरू हो जाते हैं, और जब आप थोड़ा ऑफ बीट प्रोफेशन चूज करो, आई विल से कि हमारा प्रोफेशन ऑफ बीट है, तो चैलेंजेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। आज तक भी मेरे पापा को 9:30 बजे, मेरे पापा थोड़ा पंक्चुअल है तो कॉल भी बड़ा सही टाइम पे करते हैं, 9:30 मतलब 9:30, अगर तुमने कॉल नहीं उठाया तो वो कॉल नहीं करेंगे, और ठीक है, तो ही इज लाइक दैट, ठीक। तो 9:30 बजे वो कॉल करेंगे, एंड यू सी हमारा इवेंट टाइम होता है 6 से 10 का, 10:30 का, 11 का मैक्सिमम, तो मिड ऑफ द इवेंट आते आते रात हो जाती है काफी। हाँ, तो मिड ऑफ द इवेंट में यू हैव टू पिक हिज कॉल, ठीक है, पापा का कॉल, बाकी मेरा फोन मेरे से दूर रहता है, अदरवाइज आई विल हैव टू टेक्स्ट हिम कि पापा मेरा काम खत्म हो गया, मैं घर जा रही हूँ, मैं आपको घर पहुंच के कॉल करूंगी। और मेरे पापा को आज तक नहीं पता कि व्हेन डू आई रिटर्न, सो दैट कन्विंसिंग दैट कि भाई मेरी काम लेट नाइट को खत्म होता है, बट वो गलत नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है।
ठीक है, बट वरना लोग बड़े जल्दी बोल देते हैं ना कि आप इतने रात को घर आते हो, क्या करते हो एंड ऑल, क्या करते हो। राइट राइट। तो पापा को छोड़ करके आपकी बाकी फैमिली सपोर्टिव थी आपके काम को लेकर के? नहीं, मैं पापा के बारे में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज नहीं समझे वो पहले, और अब समझते वही हैं, बाकी कोई नहीं समझता. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन माय फैमिली, मेरे दादाजी, दादी माँ एंड ऑल, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, बट अब मुझसे कोई बात नहीं करता, सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. Just because sometimes it's happened. Yeah, it happens. And I don't think, see, I can only do my work, right? I cannot make them convince कि भाई देखो मेरा काम ये है, मैं इतना अच्छा कर रही हूँ. No, they don't talk. They don't talk. Okay, no problem. Someday maybe they will understand. Yeah, someday. So, Pinky, you have a lot of followers on Instagram. Yeah. What is the secret behind this? Okay, first of all, मैं थोड़ा points में बताऊंगी ये चीज, because lot of people these days everything is like जो दिखता है वो बिकता है, right? तो सब वही चाहते हैं कि भाई जिनके followers अच्छे हैं, जिनके subscribers अच्छे हैं, they are the people who are doing really good, और जो जिनके नहीं है वो अच्छा भी कर रहे हो तो लोग उनको पूछते नहीं है. ठीक है, ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत देखने को मिलता है. हाँ, तो ऐसा नहीं है आर्टिस्टिक फील्ड, बिकॉज हमारे लिए क्या होता है, हमारा सोशल मीडिया हैंडल इज आवर प्रोफाइल. इफ यू एक्सेप्ट दैट, हम लोग अगर अपना सीवी देते हैं तो ये सारे हैंडल्स उसमें अटैच्ड होते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, आई हैव डन दिस दिस एंड दिस. अनदर थिंग इज दिस इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग. ठीक है, आप इसको एक रात में नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल आप अपने आप को बादशाह बना लो और आप खरीद लो, अलग बात है. हाँ, वो भी होता है आजकल. तो वो भी एक अलग चीज है, बट या दिस हैज हैपेंड ओवर द ईयर. ठीक है, अभी भी मुझे बहुत आगे करना है, और फॉलोअर बढ़ाने के लिए इफ यू वांट टू नो सम सीक्रेट्स, वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी, वर्क ऑन गुड कंटेंट्स. ठीक है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप वॉइस आर्टिस्ट हो, या फिर अगर आप मतलब ऐसे किसी फील्ड में हो जो कि आर्टिस्टिक है, तो यू कैन शो योर आर्ट थ्रू दैट. ठीक है, know which hashtags you want to use, follow the people who are into the same field. some लोग जलते भी हैं बहुत लोगों से, like अरे ये भी एंकर है, मैं इसको फॉलो नहीं करूंगी एंड ऑल. ऐसा नहीं है, you should follow because you need to see what your competitor is doing. And you have, and you have to be better than them. You just to keep an eye only. At least have the knowledge. Sometimes they can teach you a lot of stuff, right? Yes. तो वो भी एक्चुअली आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा है, मैं बहुत कंसिस्टेंटली फेसबुक के पेज पे काम करती हूँ. ठीक है, मेरा कंटेंट उस पे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं मेरे, लाइक 1.15K फॉलोअर्स हैं उसमें. ठीक है, तो उसका एक ही चीज है कि कीप पोस्टिंग योर वर्क, whatever you do, just the work, no bluffing stuff. आप यहाँ खाने गए हो, वहाँ खाने गए हो, वो पोस्ट मत करो, अपना काम पोस्ट करो, because if you are good at it, people will recognize you. That's what I think will happen. And post good contents. That's it. So Pinky, if you have to define your journey so far in one word, what would be that word be? Learning. Okay. Everyday learning, right? Okay. So सबके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, so आपके लाइफ में भी आई होगी. So what would be that, और कभी आया है या फिर आने वाला है? Turning point, I would say that incident of mine जिसके बाद मैं बीमार पड़ गई थी, that was a turning point. ठीक है, because that took me around 2 years to recover, 2 years, and that was a huge time, and that was like a peak of 12th peak and of then career. Not the career, because this happened when I started my engineering, right? That's what I mentioned. तो लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ ना, see, मैं नहीं बोलती कहीं पे, आई एम अ वेरी 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 इंट्रोवर्ट पर्सन, लेकिन ये लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता है because we are MCs, right? Yes. You won't believe मैं जहाँ रहती हूँ, if you ever come down to Bhubaneswar, I'll definitely keep you at my place. ठीक है, that's a 3 BHK huge flat and I stay alone. Okay. And मैंने एक्चुअली उस इंसिडेंट की वजह से ना, आई वॉन्टेड टू फाइट विथ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक आई वॉन्टेड टू फाइट विथ, आई कैन नॉट, लाइक मुझे डार्कनेस पसंद नहीं है, मुझे अंधेरा पसंद नहीं है. ठीक है, मुझे डर लगता है उससे.
देयर वाज समथिंग दैट हैपेंड, तो इसकी वजह से ये सब चीज है. एंड मुझे क्राउड पसंद नहीं, मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, तो मैं उनके बीच नहीं बैठ सकती, ठीक है. तो इसीलिए मैंने ऐसा कोई प्रोफेशन चूज किया जहां मैं हूँ स्टेज पे और मैं इस चीज से लड़ पाऊँ, लोग मुझे सुने, ठीक है. तो आई एम स्टिल फाइटिंग विद दैट. तो लोगों को बहुत अजीब है ना ये सुनना कि एक्सट्रोवर्ट नहीं हो के इंट्रोवर्ट है, एंड ये सारी चीजें कैसे बोल रहे हैं. हाँ, तो ये अभी भी है. अगर मुझे आप बिना इवेंट के 4-5 लोग बैठ जाओ, बोलो बात करने के लिए, ऐसे ही मैं चुपके से उठूंगी, खिसक जाऊंगी वहां से, बिल्कुल नहीं रहूंगी. और या यू नो देयर इज अनदर थिंग दैट यू माइट बी गोइंग थ्रू दैट, कि आप इवेंट से पहले ब्रीफिंग होता है ना, क्लाइंट बुलाते हैं कि आप आइए बात करिए. yes. I'm super scared of that. Super scared. Why so? I can't rely on anyone. I can't trust anyone. ठीक है, मतलब इतना दिमाग में गया हुआ है ना वो सारी चीजें कि लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते एंड ऑल. तो वो इवन इफ वो किसी कंपनी का सीईओ लाइक, हाँ सर मैं देखती हूँ सर, मैं कोशिश करती हूँ जाने का एंड ऑल. उसके बाद 4-5 लोगों को फोन करूंगी, अच्छा तू चलेगा क्या, अच्छा तू चलेगी क्या, उसके बाद आई विल गो. बट ऑन इवेंट ग्राउंड आई एम अ शेरनी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता वहां पे. That's great. Yeah. So, where do you see yourself in next 5 years? Any goal you have set? ट्रस्ट मी, कोविड से पहले 5 साल बाद का सोचा था. अब कोविड की सिचुएशन is थिंकिंग कि ए भगवान मुझे एक दिन और बचा देना, ठीक है. So I'm thinking right now. Seriously, the time has been very bad. So current thinking of a situation 5 years ahead, I think won't be feasible for anybody. But yeah, I want to see myself little more experienced, little more learned in the field of what I am doing, and yeah, that's what. That's good. If you have to give you, sorry, I'm doing this. So, what would be your message for a college and school-going kids who are aspire to become the anchor? College and school-going kids, if they want to become an anchor, finish your studies first. Don't think of becoming an anchor then, because it's not the right age. Second thing, it's very fascinating to see people just speaking anything on stage. लोग आजकल ना मतलब एंकरिंग का बदल चुका है, ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेट्स नॉट टेक देयर नेम्स, वर्क ऑन स्टेज एंड पीपल थिंक लाइक अरे ये तो कुछ भी बकवास कर रहा है, हम भी इससे ज्यादा बकवास कर सकते हैं, वी कैन डू दैट. बट इट्स नॉट एन इजी टास्क. First of all, you need to be learned enough to understand the technicalities of the company which you are working for. Secondly, I am an MC who's working for each and every field. I work for government events, I work for corporates, I work for social events, and I will believe that because we are into the same field, each and every sector of event is entirely different. Okay. Yes. Secondly, if you are already an MC and you have a tough time choosing which event you should take and which event you should deny, first of all, for the couple of years in your initial days, don't choose. Do anything that is coming. Okay? Because each and every event will teach you a lot. Till date, I started acting even I'm still doing it because मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा random audience होती है. मतलब आप सोचो, आप एक्टिविटी कर रहे हो, क्राउड आपको वहां से शॉपिंग करने जा रही है, लेकिन उनको आपको सुनना है, आप कैसे सुनाओगे, ठीक है. That should be the capability, that should be the voice of the person who's male or female, कि वो आपको मुड़ के देखे और वो खड़े हो जितना बिजी हो, राइट. तो वो तो कभी बंद नहीं करना चाहिए अगर किसी ने शुरू किया है तो. लेकिन क्या होता है यहाँ पे, लोग थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो अगर अच्छा एक्टिविटी इवेंट है, पेमेंट स्केल कम है, एक्टिविटी में जनरली वही होता है, तो हम मना कर देते हैं, नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी. बट I see this, I get good payments for activities too, क्योंकि अगर मेरे पास आता है तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ही पेमेंट आता है. But the biggest plus point is never say no to an activity. You will learn so much. You meet शादी वाले खड़ूस मौसा जी, especially on the initial time. Yeah. You get every kind of audience there. मतलब वो शादियों वाला ऑडियंस मिलेगा, पूरा learned person भी मिलेंगे, पूरा एकदम आपको मतलब गांवली में मिलेंगे, एंड आपको सबको टैकल करना है in one bunch of thing, right?
So that is one thing. The third thing that I really want people to understand and know this, ये मैं हमेशा सोचती हूँ, but see, if you're into a profession, be there until you make it 100% and then switch over. Right. 20% 30% का करके अरे हम कुछ और भी कर लेंगे, हम इतना फिट दिखते हैं तो हम मॉडल बन जाएंगे, ये हो जाएंगे. Yes. That won't work out. That may work out temporary. Exactly. आप किसी चीज को 200% दोगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ हो और कौन कहाँ है. Right. So wonderful, Pinky. So it's been great talking to you, and thank you so much for taking out time from your bus schedule for us, and from the entire Nettle team. We wish you all the very best for your future, and hope to see you soon in person. Definitely, I would love to work with you all, because I know you guys are also into so many stuff, and Italy, whatever you guys are doing, it's absolutely great. Keep going and keep bringing on stories which can inspire a lot of people. I know this is a talk show. Not everybody would be capable of listening to the entire conversation at one go. So keep it saved. Whenever you get time, watch 10 minutes. And yeah, at the end, on behalf of them, I would want to tell you that please like, share and subscribe to their channel. Guys, I'm sharing all his social media handles down in the description. Go subscribe and follow her everywhere. Thank you so much, Komal. I guess so that would be a goodbye, and take care of yourself, please. Thank you. It's been really great for you. Thank you. Same it was. Bye.